Hello everyone, I am Asha Kumari and I am from Army Institute of Education, and today we are going to start chapter number 1 of business studies, and it is a new journey for commerce students. So many congratulations those students who opted commerce background, and today we will start the lesson number 1 of business studies. Okay, so let's start. Before we proceed, I would like to tell you what is business studies. So, business studies is especially indicating to understand the principles of business. So, business study is we have to understand principles of business plus economics and management. So, in business study, we are going to learn about principles of business, economics, economic sectors, and management. All right. So, let's understand what is business is. So, business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, or sale of goods, services with a view of earning profit. So, our main aim is to earn profit. That is business is. But अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ खरीदते हो और आपने अपने दोस्त को कुछ बेच दिया थोड़ा सा रेट ज्यादा बढ़ाकर। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ए ने कोई सामान खरीदा जो कि 100 रुपए का था, और उसने बी को बेच दिया 110 में, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 - दैट इज 10 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है। तो अब ये अगर उसने सिर्फ एक ही बार किया है ए ने, ठीक है, तो इट इज नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी। क्या वो रोज बेच रहा है, रोज खरीद रहा है उसका कोई दोस्त? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो एक रेगुलरली एक्टिविटी है। उसके अंदर रेगुलरली परचेज होता है, रेगुलरली प्रोडक्शन होता है, और रेगुलरली सेल्स और गुड्स को, सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है टू अर्न द प्रॉफिट। ओके। और अगर हम बात करें एक्टिविटीज की, बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं मेन जो है हमारी परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल। whenever we are talking about business, these three are main activities. Okay, so one is purchase, production and sale. Okay, these are the those activities which is specially related to business. Okay, let's talk about another activities. So these are there are some more activities which known as human activity. अब आप ऐसे समझिए कि human activities क्या क्या होंगी। Human activities वो activities होती हैं जो specially कंसिडर की जाती है टू अर्न द लाइवलीहुड, टू मेंटेन द लाइवलीहुड। ओके। सो इन these activities we specially focus about economic activity or non-economic activity. Economic activities are those activities which can be earn our livelihood, and non-economic activities are those activities which perform out of love, sympathy or sentiment, and are beyond which we do for anybody else. For example, if I talk about non-economic activity, there is a person who is blind. Okay, and आप उसकी मदद कर देते, आपने उसको चाहे सिंपैथी के लिए कर दिया हो, या फिर आप यू हैव सम अफेक्शन टू with that person, that time we can't say that, that time we say that is a economic activity, we can't say that is economic activity. Economic activity वो economic activity होती है जिसके अंदर आप कुछ earn कर रहे हो, earn your livelihood. Okay, जहाँ पे आप money earn कर रहे हो. So let's understand in depth about what is economic activity and what is non-economic activities. Okay, so economic activities are related to three terms, divided into three terms. One is business,
Business, what is business? Business is refers to an activity which is connected to the production, purchase, and sales distribution, which we learn. And professional activities, those professional activities where the person is professionally knowledgeable. For example, lawyer. Lawyers जो होते हैं वो एक professionally they are professionally sound. They have proper knowledge about every their field. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का लॉयर है तो उनको पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा क्रिमिनल बैकग्राउंड का. बट अगर हम बात करें नेक्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट की है, इट इज रिफर व्हेन इंडिविजुअली इज प्रोवाइडिंग वर्क टू द अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ए ने काम दिया बी को, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट. ओके, ए ने जो है काम दिया बी को, दैट इज to uh, to get some work, and in return the person is giving something. Okay, and let's talk about non-economic activities. Non-economic activities are those activities which is specially considered to give or help to somebody beyond uh, not thinking about the profit. Okay, for example, religious, parental and social. अब आप खुद ही सोचिए, जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या आपसे इन रिटर्न में कुछ मांगते हैं? नहीं ना, वो कभी कुछ नहीं मांगते. वो हमेशा देने की कोशिश करते हैं. रिलीजन, वो आपको एक वैल्यू देता है कैसे जीना है. राइट. सोशल, सोसाइटी, वो आपको बताती है कि किस तरीके से आपको एक सोसाइटी में आगे बढ़ना है, एक नॉलेज देती है. वो कभी आपसे इन रिटर्न तो नहीं कुछ मांग रहे. करेक्ट. So let's understand the characteristics of business activities. So these are some characteristics of business. Uh, First is an economic activity. Then we will going to learn about the production and procurement of goods and services, sales or exchange of goods and services for satisfaction of human needs, dealing in a goods or services ऑन द रेगुलर बेसिस. जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम जो बिजनेस करते हैं वो एक रेगुलर बेसिस पर करते हैं. हम जो बिजनेस करते हैं वो इकोनॉमिक को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए करते हैं. हम एक लाइवलीहुड को, एक अर्निंग के लिए हम बिजनेस करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट, हम उसको ध्यान रखते हैं, प्रोडक्शन करते हैं अपने बिजनेस में. अगर कोई भी किसी भी सामान का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उस चीज का सबका ध्यान रखेगा. करेक्ट. प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट, मेनली हमारा जो फोकस होता है वो प्रॉफिट पे होता है. और अनसर्टेनिटी, रिटर्न और रिस्क, इस पर हम ध्यान देते हैं. ये है हमारे बिजनेस का जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड an economic activity. What is economic activity? It is undertake with the object of earning money or livelihood, and not out of love, affection, sympathy or other emotions. अगर हम इसको जनरल वे में देखें तो अगर हम इतना जो प्रपोर्शन है यहाँ का, इसका मतलब है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और अगर हम यहाँ की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो इसका मतलब ये है कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिर्फ बिजनेस जो है वो फोकस करता है अर्निंग मनी और लाइवलीहुड. अब एक बिजनेस क्या क्या कर सकता है? बिजनेस एक बहुत सारी चीजों पे हमें हेल्प करता है. जब एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया मिलता है हमें, एक न्यू इनोवेशन आता है, न्यू प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ना कि अरे एक नया प्रोडक्ट आया है, दैट इज समथिंग न्यू विच इज केम. राइट. सो न्यू इनोवेशन, इट इज ऑल्सो स्पेशली फोकस ऑन द कॉस्ट, कि वो कितने कॉस्ट का है, आप कॉस्ट फ्रेंडली है या नहीं है, आपकी पॉकेटों पे अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है. ओके. और और क्या क्या हो सकता है, सोचिए, कोशिश कीजिए. जब एक बिजनेस आता है तो वो काफी सारा एम्प्लॉयमेंट भी लाता है. जब एक बिजनेस आता है, वो मेन जो एक्टिविटीज है उसकी, वो किस किस पर फोकस करेगा? अपने प्रोडक्शन पर. करेक्ट. अपने सेल पर. करेक्ट. और अपने प्रोडक्ट पर.
क्लियर? जिससे कि अगर उसके पास ज्यादा डिमांड होगी तो वो ज्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा, अगर उनके पास मॉडरेट डिमांड होगी तो वो उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। करेक्ट? नेक्स्ट, production and procurement of goods and services. So every business enterprise either manufacturing the goods it deal in the acquire them from producer. तो स्पेशली जो जितने भी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन वाले जो प्रोडक्शन करते हैं, जो भी बिजनेस और प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो जो बिजनेस है वो स्पेशली फोकस करते हैं कि आप या तो वो अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या वो किसी और से ले रहे होते हैं। ठीक है? गुड्स आर कंज्यूमेबल आइटम लाइक शुगर, करेक्ट, एंड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जब भी कोई भी प्रोडक्शन होता है, या तो एक ऐसा प्रोडक्शन होगा जो जिसको एक कंज्यूम कस्टमर जो है वो कंज्यूम कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी लाइक मिल्क, करेक्ट? इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्पेशली फोकस किया जाता है वो मिल्क पर किया जाता है कि बच्चों को मिल्क पीना चाहिए, करेक्ट? तो हम उसे कंज्यूम करते हैं, राइट? और वो कहाँ से आता है? अमूल से। तो अमूल क्या करता है? वो या तो अपना मिल्क खुद प्रोड्यूस करे, या फिर वो काफी सारे अदर वेंडर से ले लो। ठीक है? तो मोस्टली जो अमूल है वो दूसरों से उसके अपने अलग अलग वेंडर्स हैं और उनसे वो लेते हैं मिल्क को। ठीक है? एंड दिस नेक्स्ट इज सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें किसी सर्विस प्रोडक्ट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल फोन का ही हम ले लेते हैं। हम फोन पर बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे बात नहीं हो पा रही है किसी से, या फिर हमारा रिचार्ज खत्म हो गया, या हमारा रिचार्ज है मगर फिर भी बात नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, करेक्ट, कि हमारे में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दीज आर द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर सर्विस, दैट इज बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बिकॉज बैंक के अंदर आप जाते हैं, करेक्ट, और उसके बाद आप वहां पर जाकर स्पेशली अपना पैसा जमा करते हैं, और फिर उसके बाद आप इंश्योर हो जाते हैं कि अब मेरा जो पैसा है वो सेफ है। सो जो सेफनेस जो फीलिंग है, दैट इज द सर्विस विच बैंक इज प्रोवाइडिंग यू। ओके? उसके अलावा वो अपना इंटरेस्ट देते हैं उस अमाउंट पे, और जो भी वो चीजें देते हैं। ठीक है? तो दैट इज अ सर्विस। नेक्स्ट, sale or exchange of goods and services. If goods are produced not for not for the purpose of sale but for the personal consumption, it can't be considered as a business activity. Okay? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये तभी होंगे जब आप किसी को एक्सचेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक जो है वो क्या करती है? आप अगर पैसा ले जाते हो, अपना मनी ले जा रहे हो, तो वो उसको सेव कर देती है। ठीक है? और सेफ रखती है। ठीक है? आपके अमाउंट में अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है और वो सेफ हो जाता है, करेक्ट? अगर यही चीज बैंक क्या करती, एक बैंक है और उसने अपना ही पैसा अपने बैंक में लगा लिया और अपने लिए लगाया, ठीक है, तो वो इट इज नॉट कॉल्ड एज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि वो कुछ एक्सचेंज नहीं कर रही, इस अभी आपको एक्सचेंज में सेफ्टी मिल रही है, करेक्ट? तो दिस इज ऑल्सो यू कैन से कुकिंग फूड फॉर फैमिली, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? अब मम्मी जब आपकी खाना बनाती हैं घर पे, तो क्या वो आपसे बोलती है कि मुझे पैसे दो खाना बनाने के? नहीं ना? तो दैट इज नॉट गुड, नॉट एक्सचेंजिंग, नॉट जो सर्विस जो मम्मा दे रही हैं, जो खाना बना के दे रही हैं, वो आप आपसे वो उनका कुछ मांग नहीं रही है। तो दैट इज ऑल्सो अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, considered as a non-economic activity, and it is also not considered in a sales or exchange of goods and services. Next,
dealing in goods and services on the regular basis. If we talk about uh, the goods and services, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बिजनेस के बारे में? हमने बिजनेस के बारे में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये जो है ये एक रेगुलर एक्टिविटी, करेक्ट? अगर ये रेगुलर एक्टिविटी है तो हमेशा इन्वॉल्व होगी उसमें गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि रेगुलर बेसिस पे डीलिंग हो रही है। जो डीलिंग है वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तभी हम मानेंगे, वरना हम उसको क्यों ही मानेंगे, करेक्ट? So this is also the characteristics or nature of business. One one single transaction for sale, purchase, therefore does not constitute as a business. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आप कुछ एक बार करते हो, जैसे जो ए था उसने अपने फ्रेंड को 100 रुपए में सामान बेचा था, 110 में सामान बेचा था, 100 रुपए में खरीदा था, तो ये भी एक हमारी एक्टिविटी नहीं कंसिडर की जाएगी। तो बिजनेस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि वो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग। हम बिजनेस क्यों करते हैं? हमें सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट? बट हाँ, और नो बिजनेस कैन सर्वाइव एज लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, क्योंकि जब भी हम एक कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कंपनी जो है वो बड़ी हो जाए, अगर वो एक जगह है तो वो दूसरे लोकेशंस पर पहुंच जाए, करेक्ट? टू spread our business. So that is why we have to earn profit. That is the main motive, to earn profit, and it this profit directly leads the growth of the surrounding of everybody. For example, जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स, ठीक है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, ओके। और वहां के आसपास का जो एरिया है वो इम्प्रूव होता है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो सिर्फ जमशेदपुर में किया था, मगर अब आप देखोगे कि वो बहुत जगह स्प्रेड है, करेक्ट? तो वो एक छोटी सी कंपनी को उन्होंने इतना छोटा छोटा अर्न करके उन्होंने उसको उसी में कंपनी में लगा के अपने आप को कितना ज्यादा स्प्रेड कर लिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप ओयो रूम्स को देखो, जिन्होंने सिर्फ एक छोटे से हाउस से स्टार्ट किया था अपना रेस्टोरेंट, और अब देखो उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है? सो बिजनेस इज ऑल्सो अ प्रॉफिट अर्निंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, uncertainty of return. This is refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in given period. ओके, अब इसका मतलब ये है कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट आपको अर्न ही ना हो, ओके। समटाइम्स आपका जो बिजनेस है वो एक टाइम पे थोड़ा सा डाउन जा सकता है, बट आपको उसके लिए तैयार रहना है। बिजनेस का एक और नेचर होता है कि कभी कभी आपको उसमें रिस्क भी फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसका क्या मतलब है? इट इज ऑल्सो लाइक, जब आप बिजनेस करते हैं तब आप दो चीजों को लेके चलते हैं। जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो स्पेशली दो चीजों को लेकर चलता है, एक प्रॉफिट अर्निंग, देन रिस्क, और एक और उसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज सर्वाइव। सर्वाइव, ओके। तो बहुत सारे को जो बिजनेसमैन हैं वो ट्राई करते हैं, उनका मेन एम होता है टू अर्न द प्रॉफिट, बट अगर प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है तो दे हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट। ऑल राइट। सो अनसर्टेनिटी एसोसिएट with an exposure to loss caused by some undesirable factors like accident, theft. So these are kind of risk which, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक कंपनी है जिसने अपना शुगर का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, शुगर केन का। अब एकदम से आग लग गई, ठीक है, तो उनका तो पूरा बिजनेस चला गया,
उनका तो पूरा लॉस हो गया। ठीक है, सो दिस इज दिस काइंड ऑफ रिस्क वी ऑल्सो फेस। ओके, सो टिल नाउ what we have learned, let's again we will focus on this slide. हमने नेचर और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली फ्रॉम द फर्स्ट डायरेक्टली। सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 एंड हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज बिजनेस एंड बिजनेस स्टडीज। सो मैंने बिजनेस क्या बताया? बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है जो कि परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स और गुड्स एंड सर्विसेज पर फोकस करती है। मेन एम क्या होता है उसका? टू अर्न प्रॉफिट। बट अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें, जो हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज स्पेशली फोकस ऑन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। हम कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कैसे, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस के, मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर्स, और कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हम पढ़ते हैं जब हम एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, हमने कुछ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, जिसमें से जो सबसे पहले हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, दैट इज production, purchase, and sale. This is the main activities of business. But here we also learn about some human activities. Human activities which is done by the human, and these are two activities, divided into two activities, that is economic activities and non-economic activities. Economic activities, those activities which especially we can earn our livelihood, हम स्पेशली जो हम अर्न करते हैं अपने जीने के लिए हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज विच इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, these are this is the some these are some activities you can segregate. Economic activities are those specially divided into three parts. One is business, profession, and employment. Business, where the person will start the business, okay, and give some goods and services, and and earn some profit. Where profession is those kind of economic activities where the person is professionally uh, knowledgeable, sound knowledgeable. For example, lawyers, doctors, those who are these are the very good professions, teachers. And next is employment, the person who give the employment, the person who give the work to the another person. Non-economic activities are those activities are related to religion, parental, and social. Religions are religious knowledge which we get, and parental activities, those activities which the parent give and performed beyond their out of love. And social activities, those social activities which we especially learn from social society and give to the society, but उसके अंदर हम कुछ अर्न नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर है जो हमने आज पढ़ा, सबसे पहले इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम अर्निंग के लिए काम करते हैं, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम स्पेशली फोकस करते हैं अपने प्रोडक्शन पर और उसको और बढ़ाने पर, गुड्स और सर्विसेज को। हम स्पेशली फोकस करते हैं सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड। जो ह्यूमन नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं। इसमें हम सब हमेशा एक्सचेंज करेंगे कुछ। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, एक कंपनी ने एसी निकाल दिया, एसी नया बना दिया, ठीक है, तो हमारी नीड फुलफिल हो गई। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अब हमारे यहाँ एसी है वो, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओके, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस। अब ऐसा नहीं है कि वो जो कंपनी है वो सिर्फ एक ही बार एसी बनाएगी, अब वो हमेशा एसी बनाएगी और उसमें इम्प्रूवमेंट लाती रहेगी अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन। ओके, अब वो जो कंपनी है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने सिर्फ एसी बना दिया मगर वो कुछ अर्न नहीं करेगी। वो स्पेशली उस
उससे प्रॉफिट भी निकालेगी और उसमें और इनोवेशन भी लाएगी। अगर कभी कभी ऐसा हो गया, अब देखो एकदम से मौसम बदलेगा, ठीक है, सर्दी आ जाएगी, तो उनका बिजनेस तो वो हो जाएगा, ठीक है, एसी तो नहीं बिकेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो उनके लिए एक अनसर्टेन रिस्क है ये, ठीक है। बट उसके अंदर भी वो और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो उनका अपना अलग केस है, ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्न what is business, business studies, what is business activities, and non-economic activities or economic activities. In next class, we are going to learn about the next portion of this chapter. So here this is the question for you, everybody. You can see on the screen. This is the question, and you have to give the answer in the comments. Okay. Okay then. Thank you.